Okay. If you're having disturbance, let me shut the this particular room's door. Wait. Okay. Good afternoon, all. The disturbance which is in the background, I cannot stop that because one of the construction work is going on just beside my home, so we need to cope up with that. Sorry for that, but I'll try to minimize that by setting the window and door, which I had already done. So, good afternoon, all. Uh, we are here. Today we are here. Wait, let me have one more. Give me 1 minute. I need to shut the door. Yes. So now finally, I'm good to go ahead. Yes. So good afternoon, all. We were discussing about the normal distribution, which is one of the most important and commonly used probability distribution, one of the realistic distribution which can help us to conclude some of the things, to conclude whether a hypothesis is correct or not for one of the data. So this is very, very important from the chapter, or I can say this is the most beautiful and most rich topic in terms of knowledge from the entire unit, from the entire syllabus even. So let's continue our discussion with the normal distribution. Some of the things I had already discussed during the previous lecture session when we were discussing. We had taken introduction for the normal distribution. This distribution is symmetric distribution. That means mean, median, and mode all will be the same for the distribution. Most of the data will be located in the middle. When we deal with the कर्व related to normal distribution, काफी सारे डेटा, बहुत ज्यादा डेटा जो है वो मिडल में ही रहेंगे, and less will be spread on both the sides. Few of them will be spread on both the sides. The shape of this particular will be a bell-shaped curve. If we have mean and standard deviation of this distribution, then we can describe the entire distribution. ये सारी बातें हम कर चुके थे. This was one of the example of a curve related to normal. We can easily identify there is a shape of bell shape है यहाँ पे. So ऐसा ही कुछ shape रहेगा, ऐसा ही कुछ distribution रहेगा जिसकी हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है normal distribution. ठीक है. Let me take you further. The function, the normal distribution function. We had gone through one of the monster function. Is it? कुछ एक function था बहुत ही बड़ा सा, 1 upon sigma under 2 pi e to the power e का negative power 1/2 x minus mu divided by sigma का whole square, where mu is a mean and small sigma is my standard deviation. What is this? This is probability density function. Why I'm using the word probability density function? Because we are dealing with the continuous random variable. The distribution which we are dealing right now is continuous distribution,
कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन माने कि हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के साथ बात कर रहे हैं, एंड वी आर क्वाइट अवेयर the probability function for the continuous random variable is known as the probability density function. So इसके लिए probability density function क्या है? This is the probability density function f of x equals to blah 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 blah, where the range of x, as we know that x is my continuous random variable, so it can vary from minus infinite to plus infinite. If x is having a range minus infinite to plus infinite, तो उसका मीन भी वहां हो सकता है minus infinite से plus infinite में कहीं पे हो सकता है. So that is the reason the mu is also having the range minus infinite to plus infinite, because mu is nothing but the mean. And as we know, standard deviation always positive hota hai. So standard deviation, that is small sigma, is always greater than 0. These are some of the limitation on this function. And mu and sigma both are called parameters for the normal distribution. अगर ये दोनों है हमारे पास तो पूरा distribution describe हो सकता है. इसका जो curve होता है वो the bell-shaped curve will be there. It is not always like that. It is lying on the positive side. It's quite possible it is on the negative side. Even it is on the center. कहीं पे भी हो सकता है. Is it? But the shape of that distribution will be bell-shaped. After that, we had taken introduction how to find the probability in one of the interval. If my x is lying in the interval x1 to x2, x my normal variate, that means a continuous random variable जो कि normal variate होगा. अगर उसकी probability find करनी है in the interval x1 to x2, then it can be denoted like this. Probably that x1 is less than equals to x is less than equals to x2. As we are dealing with the continuous random variable, that probability we can calculate that probability using the integration. So integration over x1 to x2, integration of that particular function. If I try to represent that particular graphically, then it will be look like this. Is it? We are actually trying to identify the area between x1 and x2. Is it? Area of that curve and x-axis area enclosed by that curve, x-axis and both the ordinates x1 and x2. That area is actually the probability that my random variable x is lying in the interval x1 and x2. Okay, and as we know that f of x, the probability density function, उसकी जो definition हमने दी थी अभी, it will look like this if I'm going to replace f of x. And one can easily identify this integration is not that much easy. ये इसके साथ काम करना कोई आसान बात नहीं है. It looks like scary function, is it? So what we will do, we'll find one of the alternate way to evaluate this integral. ऐसा integration नहीं करेंगे हम, कुछ आसान सा एक रास्ता लेंगे. उसके लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा. क्या करेंगे देखते हैं. Before that, I had discussed properties of normal distribution in that particular lecture. Okay, normal distribution will have some of the properties like this. The bell-shaped curve, which will be symmetric curve, और उसका symmetricity किसके कौन से ordinate पे रहेगा? X equals to mu पे रहेगा. That means I had already explained, but let me make these things clear. If I'm having one of the normal curve like this, if this is my normal curve and this is a mean, then surely, if this is a mean, then surely both these parts, this particular part and this part, will be ditto same. Is it? Or in other words, this particular x equals to mu, this ordinate will act as a symmetric axis. इसके हिसाब से ये दोनों सिमेट्रिक होंगे. यहाँ से आप अगर मोड़ दो इसको तो ये दोनों ठीक से एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे. That means this particular curve is symmetric about x equals to mu. Okay, that was first property. Then the second property was like that. This is a unimodal curve. इसमें एक ही मोड रहेगा और वो मोड क्या होगा? मीन जो है वही मोड होगा, वही मीडियन होगा. Then all three measures of central tendency, mean, median, mode, same रहेंगे. As I said, this is a symmetrical distribution. The total area under the curve gives the total probability. And minus infinite से infinite में अगर आप उसका integration निकालोगे 1 ही होगा. क्यों? देखिए एक बार. As I said that this is a my continuous random variable x
will have the range minus infinite to plus infinite, and as we know that there is a probability function, तो ये probability represent करता है. तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक f of x dx, वो f of x क्या है? f of x वही ये जो हमने अभी डिफाइन किया था. f of x is 1 upon sigma under root 2 pi e to the power minus half x minus mu divided by sigma the whole square, is it? उसका अगर आप इंटीग्रेशन निकालें माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट, then surely that integration will be 1 because that represents area as well as that represents probability, and we know that the total probability is always 1. So that is our third property. Property number 3. Let me erase this ink. Yes, here it is. And as I said, the mean will be the center. Mean x equals to mu, this particular x equals to mu will be acting as a symmetric axis. That means what? If I'm going to merge first and fourth property together, फर्स्ट और फोर्थ प्रॉपर्टी दोनों को तो एक साथ अगर मैं कंसीडर करूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं, इफ आई एम हैविंग अ नॉर्मल कर्व विथ मी लाइक दिस, और हमको पता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में उसका टोटल एरिया 1 है, और x इक्वल्स टू म्यू इज द सेंटर कि जहां से इसके दो पार्ट हो रहे हैं. दैट मीन्स अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूं माइनस इनफाइनाइट से म्यू तक या तो सिर्फ म्यू से इनफाइनाइट तक, instead of dealing with this entire region minus infinite to infinite, if we are just looking for minus infinite to mu or mu to infinite, then both that integration will have value half, will result with the 1/2 because ये सिमेट्रिक है, इसके हिसाब से सिमेट्रिक है, तो ये हाफ होगा, ये भी हाफ होगा, तभी जाके ये पूरा एरिया 1 होगा. Is it? This will be my property number 5. Let me erase this. Yes, this was our property 5. The ordinate x equals to mu divides the area under the normal curve into two equal parts. That means minus infinite to mu and mu to infinite. Yeah. Then property number 6. The value of f of x is always non-negative. The way we had constructed that particular function, उस function का जो construction है वो इसी तरीके से है कि f of x की value कभी negative हो ही नहीं सकती, which I had already explained in the previous lecture. And this was one of the most important property, that the way the area is distributed is free. The area between the ordinate mu minus sigma, mu plus sigma is 68.27%. The area between ordinates mu minus 2 sigma to mu plus 2 sigma, 95.45%, and the similar mu minus 3 sigma plus mu minus mu plus 3 sigma. Here sigma is our standard deviation. तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं mu minus 3 standard deviation to mu plus 3 standard deviation. That particular region will have 99.74% data with them. So these three figures are quite important. I can be sure in your final examination, question number 1 will have 10 MCQ, question number 2 will have 10 short question. उसमें से 2 question तो इस property से मैं निकालूंगा ही निकालूंगा. Either it will be a direct question or indirect question, but वो solve होंगे इसी property से. So these three figures are quite important. You are supposed to remember this. 68.27% data, 95.45% data, 99.74% data. Is it? And there's 3 different intervals. And always remember that mu is my mean, sigma is my standard deviation. So mean plus or minus 1 standard deviation, mean plus or minus 2 standard deviation, and mean plus or minus 3 standard deviation. These 3 figures are most important. कोई भी distribution अगर normal है तो वो ये property follow करेगा ही करेगा, पक्का है. ठीक है. I think so we were up to this in that particular lecture. I had delivered one of the session with all the labs together in the previous week, and यहाँ तक बात की थी शायद. हाँ मेघना, ये यहाँ से भी आगे गया था? नहीं सर, यहाँ तक ही हुई थी, फिर आप इसको एक्सप्लेन कर रहे थे mu minus 2. यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है?
Are we guys clear up to this? Yes, sir. Good. So let me move further. अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे पास? What is the biggest problem we guys are having right now? देखिए, let me choose my pen. Yes, we are actually worried that to find probability between x1 and x2, as I said that अगर ये probability find करनी है तो आपको इंटीग्रेशन करना है x1 x2 के बीच में with the limit x1 to x2 of that particular monster function 1 upon 6 sigma under root 2 pi e to the power minus half bracket x minus mu divided by sigma the whole square dx. ये सबसे बड़ी दिक्कत है अभी हमारे पास कि कोई भी probability find करनी होगी तो क्या सर हम ये करेंगे? It is not suitable. Yes, it is not suitable. जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, as I had promised that we will find one of the alternate way for this. इसके लिए कुछ alternate way हम find करने वाले वो हम अभी देखेंगे. पर वो देखने से पहले जल्दी से एक बार बात कर दूं कि mean median mode, as I said that mean median mode for this distribution is always same because we are dealing with one of the symmetrical distribution. Symmetric distribution किसे बोलते हैं? जिसमें mean median mode तीनों की वैल्यू सेम है. ऐसे पर पता है हमने जब बायनोमियल में बात की थी we were testing the mean के मीन कैसे फाइंड करना था, मीन की वैल्यू क्या है, मीन को डिनोट कैसे करते हैं, e of x, उसकी फॉर्मूला क्या थी, summation x p of x. That was the formula for the expected value or we can say mean because we were dealing with a discrete. जब बायनोमियल में और पॉइसन में बात की थी तो अब हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे because at that time we were dealing with the discrete probability distribution. Now यहाँ पे अगर जब मैं मीन की बात करूंगा instead of this summation we need to use the integration. Is it? We will be using integration and in place of p of x. तब हम बात कर रहे थे probability mass function की, अब हम बात करेंगे probability density function की. तो instead of p of x we will be using f of x क्योंकि probability density function को हम f of x से डिनोट करते हैं. This is just a common notation. So ऐसा कुछ होगा. पहले हम चलिए जल्दी से मीन मीडियन मोड एक बार देख ले क्योंकि हमको पता ही है वो तीनों सेम ही रहने वाले हैं. आई एम नॉट गोना डील विद दैट होल थियरी, पर जल्दी से एक बार बता दूं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. सो पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और यू कैन से मीन फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे कि हमने बोला कि भाई मीन की फॉर्मूला क्या होगी, that will be integration over minus infinite to infinite x f of x dx. Earlier that was when we were dealing with Poisson or binomial, तो फॉर्मूला ऐसे लिख रहे थे summation x p of x. Is it? Now here observe here x is there, instead of p of x I am dealing with f of x क्योंकि ये probability function था, अब probability function f of x है. पहले summation था क्योंकि discrete है, अब यहाँ पे integration है because we are dealing with continuous and this dx is for integration. Is it? So उस function को अगर आप यहाँ पे replace करें, f of x को यहाँ पे replace करें x as it is और उसका छोटा सा एक इंटीग्रेशन करे हुए, I cannot say छोटा सा, that integration will be of approximately 3 to 4 slide. वो इंटीग्रेशन करने के बाद उसकी वैल्यू आएगी म्यू. We are not interested in that particular integration, वो tedious integration नहीं करना है, छोड़ दीजिए. We are not interested in that. We are in applied science, so we are supposed to use the formulas. Is it? So उसके expectation म्यू है, as we said earlier. अब और एक बात हमको पता है, अगर इसका मीडियन भी निकाले, मोड भी निकाले तो भी वो म्यू ही आएगा because this is symmetrical distribution. Normal distribution is symmetrical distribution. तो इसकी मीन मीडियन मोड तीनों की वैल्यू म्यू ही है. ठीक है. नाउ चलिए, वी आर गुड विद द पैरामीटर्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये तो पहले भी बोला था, बस अभी कुछ बताया, मैथमेटिकली बताया. लेट मी टेक यू टू द कोर कंटेंट ऑफ टुडेज लैब. Probability of a normal random variable in an interval. Now, I need your attention 110%. यहाँ से जो बात हम करने वाले हैं, the discussion which I'm gonna carry for next 40 to 45 minutes, this is quite crucial. I'm gonna make you guys aware how to deal with the normal table. I'm gonna make you guys aware how to deal with the standard normal variate. If you're not able to get the things at a time, तभी बात कर रहा हूँ और समझ में नहीं आ रहा है, then I will request for this particular lab specifically
कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, the same time you will raise your hand, unmute yourself, talk to me, feel free to talk with me, because ये जो बात है ना, आज का जो सेशन है, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो नॉर्मल के एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एक भी क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे तो लास्ट वाला जो पूरा यूनिट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो पानी में समझो, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो हर एक क्वेश्चन में मुझे चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ यूनिट में, लास्ट यूनिट में जितने भी टेस्ट हम करने वाले हैं, जितने भी हाइपोथेसिस टेस्ट करने वाले हैं, हर बार हम अज्यूम करेंगे कि दैट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और हर बार हम यूज करेंगे नॉर्मल टेबल का, जो कि पहली बार यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। कहीं पे भी बीच में कोई प्रॉब्लम है, feel free to talk with me, don't take it lightly कि अभी नहीं समझ में आया तो बाद में समझ लेंगे, ये नहीं होगा। For this particular you need a faculty with you, इसको समझने के लिए, पहली बार समझने के लिए you need a help from a person, okay? ऐसा नहीं है बिल्कुल कि इसको बुक में पढ़ा है, कहीं बुक में कहीं पे है, मैं रीड कर लूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। ओके, सो बी फोकस्ड। कहीं पे भी ऐसा लगा कि थोड़ा ज्यादा हो गया सर, अब रुक जाओ, थोड़ी देर ब्रेक चाहिए, वी विल टेक ए ब्रेक, पर आप बात करते रहना, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो विद दिस बेस लेट मी स्टार्ट कि हम क्या करने वाले हैं। नाउ जो एक बड़ी सी प्रॉब्लम थी ना, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। पी ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू x2, यही मुझे सॉल्व करना है, इसी के पीछे मैं पड़ा हूं। एज वी डिस्कस अर्लियर, if x is a normal random variable with mean mu and standard deviation sigma, then the probability of x lying in the interval x1 and x2 will be denoted by this. As I said, graphically you can explain like this कि इन दोनों के बीच में जो एरिया है वही चाहिए। So what it will be, ये कैसे होगा, कैसे देखिए, मैथमेटिकली इट शुड बी लाइक दैट, x1 is less than x is less than x2, तो इंटीग्रेशन चाहिए x1 से x2 के बीच में वो फंक्शन का, दैट मींस के x1 x2, that similar function I had just replaced over there and I need that particular integration। अब ये तो कुछ आसान बात नहीं लग रही, looks very difficult to deal with this integration, is it? Yes, it is difficult. So what we will do, what we can do, now I'm going to transform x into one of the other variable। x के साथ काम करना है तो इस इंटीग्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा, नहीं करना है ऐसा कुछ टीडियस काम तो क्या करेंगे हम। Now p of x, probability that x1 is less than x is less than x2 can be evaluated easily, mark this, can be evaluated easily by converting a normal variable x into another random variable z। हम क्या करने वाले, उस x को, ये जो x है ना, यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, x जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल वेरिएट है, जिसके साथ अगर इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो ऐसा कुछ, जिसके साथ अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ऐसा इंटीग्रेशन करना है, which is not convenient। तो what I am doing, I am converting x into z। अब z क्या है, you don't know what is z? z is my new random variable। I am gonna make some of the assumption। वो assumption कैसे करूंगा, देखिए ऐसे करने वाला हूँ, z equals to x minus mu divided by sigma, that will be my assumption। z equals to, I'm going to assume that z equals to x minus mu divided by sigma। what is x over there? x is my standard, x is my normal variate, जो कि क्वेश्चन में होगा। mu, the mean of that particular normal variate, sigma, the standard deviation of that particular normal variate। तो अगर if I'm going to choose z as a x minus mu divided by sigma, then that will gonna act as a new random variable। वो होगा मेरा एक नया रैंडम वेरिएबल, और उसके साथ कैसे काम करेंगे, रुक जाओ। What I had chosen z equals to x minus mu divided by sigma। अब कर कुछ ऐसा रहे हैं हम लोग, I'm gonna transform x into z। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी लिखी कि z equals to x minus mu divided by sigma, this will act as my formula। अब x के बारे में तो सारी इंफॉर्मेशन है हमको, x के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है अब तक कि what is x? x is a normal variate, उसका मीन भी है हमारे पास, मीन ऑफ x is mu, उसका मीडियन भी म्यू है, उसका मोड भी म्यू है, ये पता है हमको। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है वो भी पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा।
और उसका कर्व कैसा होता है वो भी पता है हमको. द कर्व रिलेटेड टू दिस विल बी अ Bell-Shaped curve. So these are the things we are having in account for the normal variate x. Now if I'm gonna transform x into z using this particular definition, तो ये z के लिए भी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए. मुझे पता होना चाहिए what is its mean. Mean of z will be denoted like this: e of z, sorry. E of z माने की expectation of z, e of x माने की expectation of x, expectation माने की mean. So e of z भी चाहिए मुझे, फिर वेरिएंस ऑफ z भी चाहिए कि व्हाट इज वेरिएंस ऑफ z, व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ z, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा ये भी पता होना चाहिए, उसका शेप कैसा होगा, व्हाट विल बी द शेप वो भी पता होना चाहिए. सो चलिए पहले ये कलेक्ट करते हैं, फिर हम देखेंगे कि भाई z कैसे हेल्प कर पाएगा हमको. ठीक है. सो पहले चलते हैं उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने के लिए. नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z, अब z मैंने क्या लेके रखा है, z is x minus mu divided by sigma. This is my assumption for z, is it? Now we know that sigma is standard deviation, and standard deviation is always positive as well as it will be constant number. So यहाँ पे 1 upon sigma जो है ना उसको expected value से बाहर रख सकता हूं मैं. It will be surely like this: 1 upon sigma expected value of x minus mu. पता है ना, ये ऐसा हम कर सकते हैं. Let me read some of the unwanted data from this particular. Yes, इतना निकाल देता हूं. ऐसा क्यों किया मैंने, आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू की कुछ एक प्रॉपर्टी है ए एक्स प्लस और माइनस बी. याद है ये प्रॉपर्टी मिड से मैंने इंक्लूड की थी. ये इट इज ए ई रेस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स प्लस और माइनस बी, ऐसा कुछ होता है. इज इट? आई एम यूजिंग दिस सिमिलर प्रॉपर्टी ओवर हियर. 1 अपॉन सिग्मा इज कांस्टेंट, सो उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ. ई को अंदर लेके जाऊंगा. आप देखिए 1 अपॉन सिग्मा, देन दिस विल बी ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ म्यू. अब पता है म्यू तो जो है वो मीन है, वो भी फिर से कांस्टेंट रहेगा, तो ई ऑफ म्यू फिर से म्यू ही होगा. एंड 1 upon sigma as it is, 1 upon x is nothing but mu, and e of mu, constant of expectation of one of the constant, will be once again constant. So mu minus mu will be 0, 0 into anything it will be 0. मानी कि if I'm gonna take z as a x minus mu divided by sigma, तो उसकी expectation 0 निकलेगी. Expectation will be surely 0. And if I go for its variance of z, then it will be variance of z की फॉर्मूला मैंने लिखी है x minus mu divided by sigma. और तब मुझे चाहिए थोड़ी वेरिएंस की प्रॉपर्टी, वो भी हमारे पास है. वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस और माइनस बी, ये क्या था, किसी को याद है? दैट वाज a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, और वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, सो इट इज ऑलवेज a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x. तो उसी को यहाँ पे यूज करता हूँ. चलिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1 अपॉन सिग्मा इज अ कांस्टेंट. उसको बाहर निकालू तो 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर विल बी देयर, क्योंकि अगर a बाहर आ रहा है तो a स्क्वायर हो रहा है, तो 1 अपॉन सिग्मा बाहर आ रहा है तो 1 अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर, मानी कि 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर. एंड देन वेरिएंस ऑफ x माइनस म्यू. अब म्यू जो है वो मीन है, मीन जो है वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट की वेरिएंस हमेशा 0 रहती है, पता है हमको, और वेरिएंस ऑफ v इज ऑलवेज 0. सो एज वेल एज वेरिएंस ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यू जो है कांस्टेंट नंबर रहेगा, वो भी 0 रहेगा. तो उसका मतलब क्या होगा, 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर variance of x minus variance of mu which is 0, so it will be 1 upon sigma square variance of x. और variance of x क्या है हमको पता है, 1 upon sigma square as it is. variance of x is nothing but sigma square, तो sigma square cancel हो गया, ये हो गया 1. तो इसका मतलब ये हुआ, if I'm gonna assume z as x minus mu divided by sigma, उसका expected value always 0 रहेगा, और उसकी वेरिएंस, उसका वेरिएंस ऑलवेज 1 रहेगा. अगर वेरिएंस 1 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 है, क्योंकि वेरिएंस इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 रहेगा. सो ये याद रखना है कि जब मैं z को ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, x minus mu divided by sigma, then that new variable z will have the expected value 0 and variance as a 1 और standard deviation as a 1. स्लाइड के ऊपर अभी जो भी है, कोई डाउट है इसमें प्लीज बताइए. Are we good with this, or we are having any query related to this? Hello, are we clear?
समझ में आ रही बात जो भी मैं कर रहा हूं अभी? Yes, sir. श्योर? गुड Sure. गुड. Let me erase all this ink once. Yes, good. Now, expected value will be 0 as I said. Variance of z will be 1 as I said. अगर variance 1 है तो standard deviation भी 1 होगा. पर किसके लिए बात करें? Z के लिए बात करें. तो अभी तक हमारे पास क्या डेटा आया देखिए. Let me represent that collectively. अगर मैं बात करूं x की, अगर मैं बात करूं z की, और उसका मीन, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन और उसका वेरिएंस. मेरे पास x का वेरिएंस, z का वेरिएंस और दोनों के लिए मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन अभी लिस्ट आउट है. देखिए व्हाट शुड बी दिस. मीन फॉर x वाज म्यू and mean for z is always 0 as we had just proved. Standard deviation of x is sigma and standard deviation of z is always 1. Variance of x is sigma square and variance of z is always 1. So this is what the most important data is. x के साथ काम करना डिफिकल्ट है तो x को हम z में ट्रांसफर कर रहे हैं. किससे कर रहे हैं? यूजिंग दिस फॉर्मूला x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा. अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें x के ऊपर तो x z में तब्दील होगा और उसके पैरामीटर्स ये हो जाएंगे मीन 0, स्टैंडर्ड डिविएशन 1. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा वी विल हैव. इसका मतलब क्या होने वाला है? लेट मी चूज माय वन ऑफ द स्क्रीन. यस, हमको पता है कि नॉर्मल वेरिएट, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, सॉरी नॉर्मल वेरिएट कैसा होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, नॉर्मल कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है. नाउ मान लीजिए कि x एक्सिस y एक्सिस यहाँ पे, दिस इज x एक्सिस, मानिए कि x, दिस इज p ऑफ x. इट्स ओके. इट्स टोटली पॉसिबल कि आपका जो नॉर्मल कर्व है वो x एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका, लेट मी चूज द डिफरेंट कलर, हो सकता है इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट योर नॉर्मल कर्व इज समथिंग अराउंड हियर, यहाँ पे है, या तो हो सकता है कि पूरा लेफ्ट हैंड साइड में है. इट्स टोटली पॉसिबल. Any of this bell-shaped curve, if we are dealing with x, we can get any of this curve. पूरा x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में हो सकता है, आधा x एक्सिस के नेगेटिव, आधा पॉजिटिव, सारा कर्व नेगेटिव साइड में हो सकता है. इट्स टोटली पॉसिबल. बट when we gonna transform that particular into z using that particular formula, z equals to x minus mu divided by sigma, इस फॉर्मूला का यूज करके इस पूरे x को हम जब z में ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, तो जो z वाला डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो भी एक नॉर्मल कर्व ही आएगा. श्योरली इट विल बी ए नॉर्मल कर्व और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कर्व ऑलवेज ऐसे ही होगा. देखिए ऐसे ही, जिसका सेंटर रहेगा z equals to 0, मानी कि मीन रहेगा z equals to 0, that curve will be symmetric on z equals to 0 surely for each and every time. Now this is once again a very very important data. कोई भी नॉर्मल कर्व है यहाँ पे, उसको मैं z में ट्रांसफर करूंगा, वो हर बार ऐसा ही दिखेगा ईच एंड एवरी टाइम. चाहे वो रेड कलर से मैंने प्रेजेंट किया वो हो, जो कि पूरा लेफ्ट हैंड, पूरा राइट हैंड साइड में था एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, या तो फिर ये अगर मैं बात करूं कि जो पूरा नेगेटिव साइड में, या तो फिर ये बात करूं कि आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव साइड में, उसको जब भी मैं ट्रांसफर करूंगा वो हर ऑलवेज इसी तरीका रहेगा, जिसमें सेंटर, जिसका मीन जो है वो 0 रहेगा, जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन 3 रहेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 रहेगा. दैट मीन्स आपको पता है कि z कोई भी नॉर्मल को के लिए 3 डेटा आपके पास है. म्यू से लेके जाओ, म्यू -1 स्टैंडर्ड डिविएशन, म्यू +1 स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर म्यू -2 स्टैंडर्ड डिविएशन, म्यू +2 स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड तीसरा एक इंटरवल है हमारे पास म्यू -3 स्टैंडर्ड डिविएशन से म्यू +3 स्टैंडर्ड डिविएशन. एज वी डिस्कस इन द प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, ये दोनों फिगर, ये तीनों फिगर से हमारे पास इट इज 68% दिस इज 95.42% डेटा एंड दिस इज 99.74% डेटा आता है, दिस इज 27% डेटा.
68.27% डेटा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, इज इट? अब हम नॉर्मल को ट्रांसफर कर रहे हैं जेड में, तो वो भी नॉर्मल ही रहेगा, पर उसके लिए मीन क्या होगा हमको पता है। इसके लिए मीन की वैल्यू है 0, मीन इज 0, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1 एज आई सेड इन द प्रीवियस स्लाइड। तो यहां पे अगर मीन माने कि म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन माने कि सिग्मा, वो अगर यहां पे रिप्लेस करूं ना मैं, देखिए म्यू की वैल्यू 0 कर दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 कर दूं, तो ये इंटरवल कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा 0 - 1, दैट मींस -1 से +1। म्यू को 0 लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा को 1 लेना है, तो 0 - 2 इट विल बी -2, 0 + 2 इट विल बी 2, -2 से +2, एंड दिस विल एक्ट एज अ -3 to +3। मानी कि इस कर्व में -1 से +1 में आपके पास 68% डेटा रहेंगे, -2 से +2 में आपके पास 95% डेटा रहेंगे, और -3 से +3 के पास बीच में आपके पास 99% डेटा रहेंगे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ईच एंड एवरी नॉर्मल कर्व विल बी लुक लाइक दिस। वो हर बार ऐसा ही होगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसका मीन जो है वो 0 से अलग है, मीन 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे ऐसा हो सकता है। सो दिस इज व्हाट, कि अब हम क्या कर रहे हैं, एक जो बहुत ही वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन था उसको एक पूरे उस ढांचे को एक वेल डिफाइंड कर्व में, वेल डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नोन एज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसका एक अलग नाम दूंगा मैं अभी, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेट मी शो यूजिंग दैट पर्टिकुलर, क्या कर रहे हैं हम, दिस z distribution of z is also normal. Thus, if x is a normal random variable with mean mu and standard deviation sigma, जैसा मैंने अभी बोला यहाँ पे उस टेबल में ही, let me erase this particular outline, this will make you a bit comfortable. Wait, yes, देखिए, if x is normal random variable with mean mu and standard deviation sigma, x की बात है, then z is normal random variable, z is also normal random variable with 0 and standard deviation 1। ये हर बार सही होगा, हर बार इसका मीन 0 होगा, हर बार इसका standard deviation 1 ही होगा, as I mentioned over here, observe, is it? So what we are doing, since the parameter of distribution of z are fixed, यहाँ पे z के सारे पैरामीटर फिक्स है, जैसे मैंने बोला हर बार कोई भी सिचुएशन में इसका मीन 0 ही होगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ही होगा। Since the parameter of distribution of z are fixed, it is also a non-distribution, and it will be known as a standard normal distribution। तो देखिए यहाँ से आपके पास एक और नया वर्ड में दे रहा हूं आपको। अब तक हमको पता था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, नाउ आई एम गोना इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों अलग है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन and standard normal distribution, both these are different. If I'm saying normal distribution, I'm dealing with x. If I'm using the word standard normal distribution, I'm dealing with the z. So further, z is termed as standard normal variate. X is normal variate and z is my standard normal variate. अब ये करना कैसे? Thus, the distribution of any normal variate x can always be transformed into standard normal variate. कभी भी आप x को z में ट्रांसफर कर सकते हैं, कभी भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफर कर सकते हैं using this particular formula, z equals to x minus mu divided by sigma. Using this particular formula, you can convert x into z each and every time. और जब भी आप करें, मीन तो 0 ही रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ही रहेगा। क्यों? Here is the proof. ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ है, क्योंकि मैंने z लिया ही इसी तरह है। सो अब कुछ ऐसा है कि x के साथ वो इंटीग्रेशन में काम करना मुश्किल हो रहा था, अब x को हमने z में ट्रांसफर कर दिया। x जो स्टैंडर्ड नॉर्मल, सॉरी, x जो है वो नॉर्मल वेरिएट है, z जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, तो x में वो काम करना डिफिकल्ट था। देन क्या z में ये आसान होगा? कैसे करेंगे देखते चलिए। अब इसके लिए लेट मी चूज माय पेन, वेट। व्हाट इज एम, क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं? पूरी बात जो है वो अभी एक ही जगह पे आके रुकी हुई है कि आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दिस प्रोबेबिलिटी।
x1 is less than equals to x is less than equals to x2, ये प्रोबेबिलिटी मुझे आइडेंटिफाई करनी है, इसी के पीछे मैं पड़ा हूँ. मुझे पता है ये प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए वो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो इंटीग्रेशन मुझे नहीं करना है. ठीक है, so I'm not gonna deal with that integration. So once again problem is yet there, solve नहीं हुआ, यही करना है भाई. अब थोड़ा सा रुको, चलिए एक इनइक्वालिटी मैं आपको देता हूँ. a is less than equals to b. This is one of the inequality. Is it? अब मैं इन दोनों में से, let me take you to the 8th standard. a is less than equals to b, ये पता है हमको. अब दोनों में से कोई एक फिक्स नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दूं, a minus 2, b minus 2. What I'm doing, I'm subtracting a same number from both that constant a and b. Then what will be the inequality? Well, inequality holds once again. क्या inequality less than equals to रहेगी या change हो जाएगी? कोई बताएगा मुझे जल्दी से. This is a question from 8th standard. Quickly, inequality will hold or it will change. आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिए. 5 is less than equals to 8, is it ना? 5 minus 2, 8 minus 2, inequality क्या रहेगी? वही रहेगी ना, less than equals to, yes or no? लो, मैं अकेला ही हूं यहाँ पे. कितने लोग हैं मेरे साथ अभी? How many of you are attending this? हर कोई है भाई, तो क्यों बात नहीं कर रहे हो? a is less than equals to b, a minus 2, b minus 2, inequality वही रहेगी ना, less than equals to, yes or no? यस सर, वही रहेगी सर, वही रहेगी. अब इन दोनों को मैं देख, यहाँ पे देख, इन दोनों को मैं 3 से डिवाइड कर दूं. डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3. आई एम डिवाइडिंग बोथ दैट बाय वन ऑफ द पॉजिटिव नंबर, मार्क दैट. आई एम डिवाइडिंग बोथ दैट बाय वन ऑफ द पॉजिटिव नंबर, सेम पॉजिटिव नंबर. तो इनइक्वालिटी चेंज होगी कि वही रहेगी? बता. इन दैट केस इनइक्वालिटी विल होल्ड और इट विल चेंज. सर पॉजिटिव से कर रहे हैं सर, तब तो वही रहेगी ना. It will hold once again. So similar, I can divide both that by one of the fixed number, which should be positive. Then inequality will once again hold. Now I'm using this. ये क्यों बात करने लगा अभी मैं? देख, अब यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा. हमको पता है हम z क्या लेने वाले हैं. Z is a assumption that is x minus mu divided by sigma. Is it? Now I'm gonna change this inequality. चाहिए तो यही चाहिए हमको. Probably as it is. अब मैं इन तीनों में से म्यू सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं. x माइनस म्यू, कैपिटल X माइनस म्यू एंड x2 माइनस म्यू. कोई प्रॉब्लम आएगी? म्यू इज अ नंबर, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉरगेट अबाउट दैट. बट आई एम सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम ऑल थ्री. तो इनइक्वालिटी विल होल्ड और नॉट? इनइक्वालिटी विल होल्ड और इट विल चेंज. देखिए अभी इन तीनों में इनइक्वालिटी क्या है? x1 इज लेस देन x इज लेस देन x2. अब मैं x1 में से म्यू सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, x में से भी म्यू सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, x2 में से भी म्यू सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. तो मैं यह पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, inequality will hold or not? Look, this is not done, huh? I need a reply over the chat box or unmute yourself and talk to me. Am I making you guys bored? Or you are not able to understand what I'm saying? My God, yet you guys are not replying. Sir, it would be the same inequality. Who's that? Vibhusha. It will remain as it is, surely, is it? Because I am subtracting a same number from that. One of the constant, mu is one of the constant. इन तीनों में से मैं एक ही नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इनइक्वालिटी ऐसे ही रहेगी. And now I am dividing all three by one of the positive number. We know that sigma, small sigma is a standard deviation and standard deviation is always positive. मैं इन तीनों को डिवाइड भी कर रहा हूं, तभी भी इनइक्वालिटी तो सेम ही रहेगी. Yes or no? So both these are same. x1 is less than x is less than x2 करूं या तो फिर ऐसा करूं, ये दोनों तो एक ही बात है. ये हमने प्रूव कर दिया. चलिए, तो
इस फॉर्मूला का यूज करके, as we know that z is x minus mu divided by sigma, this is what we had assumed, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूं तो देखिए एक बार, ये बीच में जो है x minus mu divided by sigma, I can label as z, capital Z, and this looks like similar. This capital X minus mu divided by sigma, this is small x1 mu minus sigma, तो इसको मैं z1 small z1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं small z2 नाम दे देता हूँ. So what does this mean? What does it mean? Probability that x is lying between x1 and x2 is literally equals to probability that z is lying between z1 and z2. Is it? अब ये करना मुश्किल था तो हम करेंगे ये, इसको फाइंड करेंगे. z1 is less than z is less than z2. Let me show कैसे करेंगे. The similar step which I just explained now. अब ऐसा करने के लिए यहाँ पे मैंने z1 का क्या लेबल दिया हुआ है, z1 is x1 minus mu divided by sigma, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, z2 is nothing but x2 minus mu divided by sigma. अब ऐसा करने से मैंने क्या किया, एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मल वेरिएट x को तब्दील किया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z में. I had converted x into z, where x is normal variate, z is standard normal variate. और graphically what I am doing, graphically x1 x2 कहीं पे था, this is my normal curve, this is my normal curve with x, उसको मैं तब्दील करूंगा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में. और मैंने बताया था स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व ऐसा ही होता है कि जिसका पिक जो है वो जीरो के पास ही रहता है. सो इट विल बी z टू p ऑफ z, जिसका सेंटर जो है वो जीरो के ऊपर है, जिसका मीन जो जीरो के ऊपर है. दिस x1 एंड x2 विल बी कन्वर्टेड इनटू z1 एंड z2. तो सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये नहीं हो रहा था तो ये कैसे होगा, आपके दिमाग में शायद ये भी क्वेश्चन है. अब सर ये तो नहीं हो रहा था हमसे, ये तो सिमिलर ही है, ये नॉर्मल कर्व है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है. नाउ दिस विल बी इजी टू आइडेंटिफाई दिस particular reason. That will be easy because we are having one of the table with us. The table is known as a standard normal table, standard normal table Z. वो टेबल मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला था कि बिफोर कमिंग फॉर द नेक्स्ट लैब आपके पास उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए. अभी है कोई जिसने हार्ड कॉपी ली हुई है, उसकी जेरोक्स निकलवाई है नॉर्मल टेबल की? मैंने सभी के साथ शेयर किया है, हाँ या ना? नॉर्मल टेबल मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, हाँ या ना? व्हाट्सएप ग्रुप में यस और नो किया है कि नहीं किया? भवदी बोल रहा है नहीं किया. नहीं किया बेटा, अगर नहीं किया तो अभी करना पड़ेगा बिकॉज वी नीड दैट. लेट मी गिव जस्ट एक मिनट दे दीजिए मुझे. नॉर्मल टेबल तो ये रहा. कोई कंफर्म करेगा मैंने शेयर किया था नहीं किया था? सर नहीं दे रखा है. ठीक है अभी दे देता हूँ. चल यस सर. आज के डिस्कशन में हम वहां तो नहीं पहुंचने वाले कि एग्जाम्पल नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी काफी कुछ डिस्कस करना बाकी है. पर ठीक है, ये जो अभी शेयर कर रहा हूं मैं आप सभी के साथ, दिस इज चलिए सारी बैच में कर देता हूँ ABC. Where is Betsy? Where is Betsy? Now this is there at your WhatsApp group, 3TP1 batch C. I had sent that, I had forwarded that particular normal table. अब क्या करना है, when we will be once again in the session. आज कल ही हमारा एक लैब होगा ना शायद, तो कल ही होगा, मंडे को होगा. आप हाँ मंडे को है, मंडे को तो एग्जाम में चला जाएगा. So we will be interacting once again on next Wednesday. उस दिन आपके पास ये नॉर्मल टेबल होना ही चाहिए.
ठीक है, हार्ड कॉपी में। अभी नहीं चलेगा क्योंकि अभी आप सेल फोन से काम चलवा लीजिए, क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल तक तो नहीं पहुंचेंगे, सो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये नॉर्मल टेबल आपके पास होना चाहिए ना। व्हाट आई वाज सेइंग, for this particular standard normal variate z, we are having a well defined values कि भाई z1 z2 के बीच में कितना एरिया होगा, 0 से z1 के बीच में कितना एरिया होगा, 0 से z2 के बीच में कितना एरिया होगा, वो इस नॉर्मल टेबल में है। एंड यू विल हैव दिस नॉर्मल टेबल इवन इन द एग्जामिनेशन में भी वो आपको प्रोवाइड करेंगे कि दिस इज योर नॉर्मल टेबल, यू मे यूज फॉर योर कैलकुलेशन। सर इसको So- रीड कैसे करेंगे? हाँ, वो अभी मैं सिखाऊंगा बेटा। But we are yet not sure how to read the data from the table. That I will make you understand in this session only. But this is the thing which we are going to do. X के साथ काम करना टफ था, X को हमने ट्रांसफर किया Z में। Z जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो ऐसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन ऑलवेज 0 होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन 1 होता है, और कोई भी कर्व हो वो इस तरीके से इस शेप में आ सकता है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे काम करेंगे उसके साथ। नाउ डीलिंग विद द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z, हाउ वी आर सपोज्ड टू डील विद z, कैसे करना है। अब उसके लिए 2 3 4 केसेस है अलग अलग। इफ बोथ z1 एंड z2 आर पॉजिटिव, ये पहला केस है, और इफ बोथ आर नेगेटिव, सेकंड केस आई कैन टेक वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव। एक ये कैसे, एक ये कैसे है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो कैसे करना है। फिर काफी सारे और भी केसेस है, z1 इज लेस देन, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। पर रुक जाओ, पहले ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद में अगर जरूरत पड़ी तो हम डिस्कस करेंगे वो केसेस सारे। दिस दैट केसेस व्हिच आई हैड मेंशन इन द प्रीवियस 3 और 4 स्लाइड, वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किए। अब क्या करेंगे हम, पहले तो यहाँ पे पूरा डिस्कस कर ले एक बार कि इस टेबल को कैसे रीड करना है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है डिफरेंट, वो सारे एग्जांपल्स लेके अभी हम एक बार बात कर ले। फिर जाके अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तब मैं वो केसेस डिस्कस करूंगा। अगर मुझे लगता है, आई एम क्वाइट श्योर कि आई विल नॉट हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरी केस, क्योंकि वो यहाँ पे एग्जांपल से ही समझ में आ जाएंगे। चलिए छोड़िए। So जैसे बताया, we are having one of the standard normal table, standard normal Z table. This is the table. Now observe the range. Okay, पहले तो ये देखना है कि we are having 2 different captions in the column. Over the column it is 0.00, 0.01, 0.02, 0. Up to 0.09. Okay. And if you observe the row wise, then it is 0.0 से लेके कहां तक जा रहा है, कोई बोलेगा मुझे 3.0, देखिए it is up to 3.0 only. अब 3 से आगे की वैल्यू अगर कोई पूछे कि 4.1, 4.0, 3.5, 3.10, अगर ये वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 3 से आगे की वैल्यू ही नहीं होगी। कोई बताएगा मुझे क्यों नहीं होगा? आप बता सकते हैं? यू मे एक्सप्लेन, माइट बी। अगर आपको आगे की सारी बात समझ में आ रही है तो आप बता सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अभी टेबल में मैंने z की वैल्यू 3 से आगे क्यों नहीं ली? वाई हैड नॉट प्रेजेंट 3.1, 3.2? कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? Z सर मोस्ट ऑफ द डेटा तो -3 से 3 के बीच में आ जा रहा है। कौन बात कर रहा है? ये कौन है जो बिरबल का काम कर रहा है? यस, हु वाज दैट? विभूषा। विभूषा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट माय डियर। अभी 2-3 स्लाइड पहले मैंने बताया था कि जो z है ना, विच इज आवर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, उसका मीन रहने वाला है 0, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन 1 है, मानी कि -3 से 3 के बीच में दिस कैन बी माइनस, माय मिस्टेक, यस, -3 से 3 के बीच में कितना परसेंट डेटा आ जाएगा बेटा? 99.74% डेटा। दैट मीन्स ऑलमोस्ट ऑल डेटा विल बी बिटवीन -3 to 3। उससे आगे कोई डेटा होगा तो बहुत 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 रेयर होगा, बहुत ही रेयर होगा, 0.26%, तो जो कि काफी छोटा है। सो दैट इज द ओनली रीजन कि z की यहाँ पे जो वैल्यू मैंने दी रखी है टेबल में, देखिए एक बार, here it is,
वो z की रेंज जो है ना वो 3 तक ही है। कोई भी नॉर्मल टेबल आप लेंगे कहीं पे से भी उसको रीड करेंगे वो 3 से बड़ा होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। ओके, दैट इज द रीजन। अब लेट मी मेक यू हाउ टू रीड दिस, इसको कैसे रीड करना है। अब उसके लिए एक सिचुएशन चाहिए। स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। इसके लिए कुछ कुछ डेटा है हमारे पास। इसका मीन 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, -3 से 3 के बीच में 99% डेटा, -2 से 2 के बीच में 95% डेटा विल बी देयर, -1 से 1 के बीच में कितना डेटा रहेगा बेटा, 67 पॉइंट समथिंग परसेंट डेटा, इज इट, जो भी है 68.27% डेटा, इज इट। और एक बात थी, this standard normal curve, when I'm using the word standard normal curve, I'm dealing with z. If I'm using the word normal curve, I'm dealing with x. So our standard normal curve is bell-shaped, as well as it is symmetric about z equals to 0. वो z equals to 0 के लिए सिमेट्रिक है, मानी कि जितना परसेंट डेटा यहां पे है, जितना भी डेटा इस साइड है, ऑल दिस रीजन, ये जो भी रीजन है, यहां पे मैं अभी शेडिंग दे रहा हूं, दिस इज लिटरली इक्वल्स टू दिस पार्ट, ये दोनों पार्ट डिटो सेम है, इज इट। ये भी कैरेक्टरिस्टिक थी हमारे नॉर्मल कर्व में भी थी, तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में भी ये कैरेक्टरिस्टिक थे। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, we are just taking consideration, we are just taking this part in the consideration। अभी हम काम करेंगे सिर्फ इसी के साथ, पॉजिटिव पार्ट के साथ, ये वाला 0 to infinite, 0 to infinite, जबकि पता है 0 से 3 में ही सब कुछ कवर होने वाला है, बट वी आर जस्ट इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस पार्ट। ये टेबल जो मुझे वैल्यू दे रहा है ना, वो 0 से लेके राइट हैंड साइड में, दैट मीन 0 से पॉजिटिव पार्ट के लिए ही डेटा है, ये पूरा डेटा 0 से पॉजिटिव पार्ट, माने कि 0 से 3 के लिए ही, देखिए आप, इज इट। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, इसको निकाल दो, रुक जाओ, अरे यार सब कुछ निकल गया, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन, आई एम नॉट गोना ड्रॉ, लेट मी शो दिस, यस, oops, wait, yes, this is what this particular table is gonna give me. If I need to find the probability that z is lying between, अरे क्या दिक्कत क्या है इसको, something is wrong with my pad today. If I wish to find probability that my random variable z is lying between 0 to 2 or 2.53, then this table can help me. Surely this table can help me. If I wish to find probability that my random variable z is lying between z0 and 1.89, surely this table will help me. If I wish to find the probability that my random variable z is lying between 0 and 0.78, then surely this table will help me. अब ये तीन जो मैंने लिखे हैं ना यहाँ पे देख, सिचुएशन ए, बी एंड दिस इज सी, अब इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तुझे, बता मुझे, इन तीनों प्रोबेबिलिटी में कुछ कॉमन आइडेंटिफाई कर पा रहा है तू? कैन यू आइडेंटिफाई सम ऑफ द सिमिलरिटी इन दिस थ्री? इस ये तीन जो एग्जाम्पल मैंने अभी लिए, 0 से 2.53, 0 से 1.89, 0 से 0.78, इन तीनों में मैंने कुछ कॉमन रखा है। क्या कॉमन रखा है? 0 स्टार्टिंग पॉइंट, इज इट? ये तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। ये जो टेबल है ना, ये जो पूरा टेबल है ना, वो तभी मुझे हेल्प कर पाएगा इफ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी इन वन ऑफ द इंटरवल 0 to z, 0 to z। मानी कि एक एंड पॉइंट 0 होना ही चाहिए। आपको चाहिए 0 से लेके 1 की प्रोबेबिलिटी, हो सकती है। आपको चाहिए 0 से लेके 2 की प्रोबेबिलिटी, मिल सकती है।
अगर आपको चाहिए 0 से लेके 2.5 की प्रोबेबिलिटी मिल सकती है यूजिंग दिस टेबल, तो थोड़ी लिमिटेशन होगी। देखो 0 से स्टार्ट होना चाहिए और पॉजिटिव पार्ट में ही जाना चाहिए, तभी ये टेबल आपको हेल्प कर पाएगा। अब वेट कैसे रीड करेंगे ये भी बता दो एक बार, रुक जाओ। सपोज दिस इज माय 2.53, दिस z इज 2.53, ये लग नहीं रहा अभी 2.53 जैसा, बट मान लीजिए इफ दिस इज 2.53 and I'm interested to find probably that 0 is less than z is less than 2.53, तो मैं क्या करूंगा? देखिए इस टेबल में से from the first column I will pick 2.5 from this particular 2.5 is here. Here is 2.5. Let me pick the red color, it will be more suitable for all of you. So first of all I will pick 2.5 from the table. Here is 2.5. I'm interested to find 2.53, so I'm left with 0.03, तो 0.03 में लूंगा कॉलम से, this is 0.03 and then I will find intersection of both this 0.03 2.5, उसका इंटरसेक्शन निकलेगा 0.4943। सो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना वो होगी 0.4943। दैट्स ऑल, वी आर डन। ये होगी, बात खत्म हो गई। अगर मुझे चाहिए 0 से 1.89, चलो कौन हेल्प करेगा मुझे? हु विल हेल्प मी? प्लीज प्लीज प्लीज। चल विभूषा अनम्यूट कर बेटा। 0.89 જોઈએ છે મારે, સોરી 1.89, 0 થી 1.89 જોઈએ છે મારે, તો મારે z એટલે શું લેવાનું? 1.89 લેવાનું। 1.8 ચાલ તો પેલા 1.8 ક્યાંથી લઉં? પેલી કોલમમાંથી લઉં। ધીસ ઇઝ 1.8। yes sir પછી શું બાકી છે બેટા? 0.09, તો 0.09 0.09 કોલમમાંથી લે, લાસ્ટ કોલમ। આ બેનું ઇન્ટરસેક્શન ગોત। તમને ખબર છે તમે લોગ ટેબલમાં આવું જ કંઈક કામ કરતા। yes sir આ બેનું 0.4706 ઇન્ટરસેક્શન, yes it is 0.4706, is it? This is 0.4706। ચાલો વિભૂષાજી તું કહી દે ફટાફટ આના માટે। 0 અને 0.78 શું કરું? 0.78 0.7 0.08 0.08 જો કે અહીંયા છે, આ બેનું ઇન્ટરસેક્શન લઈ લો, 0.2 like this 0.2823, is it ના? yes sir So આ રીતે ટેબલ રીડ થાય છે, પણ આ ટેબલ તો જ કામ કરે વિભૂષા। This table will work if and only if one of the endpoint, that intervals one of the endpoint must be 0 હોવો જ જોઈએ। નથી તો આ ટેબલ કામ નથી કરતું। Then this table will not give you. That means what I'm asking, suppose someone is trying to find, Meghna be ready, one of the next question will be towards you। Meghna, are you there? Are you attending? मेघना तो सो गई लगता है। यस सर। नहीं सर यहाँ कर रही, हाँ पक्का सर। अटेंड कर रही है? हाँ देखना, सर। तेरे तरफ एक बहुत बड़ा तीर आ रहा है अभी। ओके सर। मैंने क्या बोला, 3 जो हमने क्वेश्चन किए ये तभी काम करेगा बेटा अगर एक एंड पॉइंट 0 है। पर ऐसा तो नहीं ना कि हम हर बार 0 से 2, 0 से 2.5, 0 से 3.5 फाइंड कर रहे हैं। नहीं, हो सकता है वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड 1.52 is less than equals to z is less than equals to 2.37। अगर मुझे ये करना है तो क्या करूंगा? बाप रे बाप। अब देख इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 नहीं है। कैन यू हेल्प मी फॉर दिस? कैन यू हेल्प मी फॉर दिस? लेट मी रब दिस पर्टिकुलर। रुक जा, देख, अरे यार निकल ना। पेन, इसका मतलब क्या है मेघना? देख एक बार, ये मेरा z है, is it? This is my standard normal curve, this is my p of z and this is z equals to 0। z equals के 0 के पास probability maximum है, ऐसा मान रहे हैं हम। And this is I'm interested to find 1.52 and 2.37, so approximately I am picking, this is 1.52 and this is approximately 2.37। अब मुझे इन दोनों के बीच में जो भी एरिया है ना, between both this, I am interested to find this particular region only। पिछली बार जो हम कर रहे थे वो 0 से 0.52 अगर हो तो हम कर सकते हैं,
0 से 2.37 है तो हम कर सकते, पर 1.52 से बीच 1.52 और 2.37 के बीच में अगर एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे? चल मेघना, अगर तुझे समझ में आया है तो तू पक्का मुझे आंसर कर पाएगी। चल, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इन दैट केस व्हाट आई विल डू, यस प्लीज बता। सर 0 से 1.52 की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेंगे और रुक माइनस जा मैं लिखता जाऊं, रुक जा 0 से लेके कितने क्या फाइंड कर लूं? 1.52। ओके, ये फाइंड कर लूं पहले, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करूं किस में से? 0 से 2.37। तो ऐसा पहला करना चाहिए ना, 0 से 2.37 तो मैं निकाल लूं। 7 में से 1.52 माइनस होगा, यस, क्योंकि वो बड़ा है। तो सर 0 is less than, z is less than 0.0554। 1.52 होगा, ठीक है। हाँ सर। अब देख, ये नहीं हो सकता था, ये दोनों तो हो सकते टेबल से। सर 0.4911 माइनस 0.4357। 2.37, चल जल्दी से, यस वो बोल रहा है, सही बोल रहा है। 2.37, 2.3 इंटू 0.07 ये होगा 0.4911 माइनस 1.52, 1.5 is here, 0.02 is here, that is 0.4357। इन दोनों का जो भी, इन दोनों की जो भी सब्ट्रैक्शन आ रहा है, that will be answer। Are we good? समझ में आ रही है ये बात? कितनों को समझ में आ रही है? अभी रिप्लाई करना है, अभी रिप्लाई करना है चैट बॉक्स में। कितनों को ये बात समझ में आ रही है? जो भी है यहाँ पे प्रेजेंट, कितनों को ये बात समझ में आ रही है? देख, मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, मैंने 4 स्लाइड स्किप करके तुझे डायरेक्टली ये एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं। If I'm gonna explain the theory of this, तो तू तेरा सर भारी हो जाएगा पहले तो। इसका मतलब ये नहीं है कि I'm gonna skip that particular theory, वो अभी समझ में आएगा। ये काफी कुछ कंसेप्ट ऐसा रहता है मैथ्स में जिसमें हर बार पहले थियरी फिर एग्जांपल जाए ना तो बोरिंग हो जाएगा, पर पहले एग्जांपल फिर थियरी, देन इट विल बी कंफर्टेबल, श्योरली इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू। सो अभी तक जो है वो समझ में आ रहा है ये केस सभी को? अच्छी बात है। अभी रुक जा, एक और केस है यहाँ पे, देख। लेट मी इरेज ऑल दिस डेटा। यहीं पे रहना हर कोई बंदा, डोंट टेक इट लाइटली। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी 1-2 केस और है जो कि डिस्कस करने पड़ेंगे। क्या? अब मान ले कि यहाँ पे 2.37 नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड 2.37। आई एम लुकिंग फॉर, सपोज आई एम लुकिंग फॉर, निकल जाना भाई, निकल जाना। सपोज आई एम लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी दैट, जैसे कि मैंने वाला z के साथ बात करें तो z तो नेगेटिव भी हो सकता है। माइनस 1.43 is less than equals to z is less than equals to positive 1.43। ये देख ले, शायद ये 1.43 है। This is the point, approximately this is 1.43 positive. Similar distance will be here. This is z equals to minus 1.43। अब इन दोनों के बीच में जो भी रीजन है, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड ऑल दिस। अब इस टेबल में तो हमारे पास लिमिटेशन है, नेगेटिव वाला तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, नेगेटिव तो है ही नहीं, तो नेगेटिव तो मिलेगा ही नहीं। क्या कर लूं? चलो यहाँ पे क्या कर लूं, कौन बताएगा? विभूषा @1.43। अब @1.43 का क्या मतलब है? सॉरी सर, वो 2 लिखने जा रही थी। कहाँ गया? ओके 2 को तूने, यस यू आर करेक्ट विभूषा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। चल विभूषा एक ने बोला, और किसी को समझ में आ रहा है? भारती तू क्या बोल रही है? भारती सर आधा लेके उसका डबल कर दिया। यस सर, उसका वो 0 से उसका मतलब आधा लेकर मतलब उसको डबल कर देंगे ऐसा। 0 से मतलब उसका आधा मतलब लेके आधा मतलब डबल कर देंगे। सर मींस मतलब टोटल जो है उसका हाफ करके ट्वाइस कर देंगे ऐसा। क्यों ऐसा क्यों कर सकते सर? क्योंकि उससे एरिया, क्योंकि ये मतलब सिमेट्रिक है सर, तो दोनों साइड से इक्वली एरिया होगा सर। yes there you are, that's your answer। this curve is literally symmetric, this curve is literally symmetric। अगर यहाँ से z equals to, ये जो है ना z equals to 0, ये जो पर्टिकुलर कर्व है ना, यहाँ से अगर इसमें कागज को मोड़ दूं, ये सपोज के दिस इज वन ऑफ द पेपर, यहाँ से इसको मोड़ दूं ना तो ये दोनों एंड एक दोनों के ऊपर चिपक जाएंगे पूरी तरह से।
इट इज लिटरली सिमेट्रिक। वो फ्री हैंड जब हम करते थे ना, मुझे आपको तो पता नहीं, मुझे मेरे टीचर जब मैं हाई स्कूल में था तो सॉरी प्राइमरी था, वो फ्री हैंड दौड़ने के लिए, फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए बोलते थे कि जैसा लेफ्ट हैंड साइड में लिटरली ऐसा ही होना चाहिए राइट हैंड साइड में, सिमेट्रिक फिगर इज इट। तो हम क्या करते थे, बीच में से उसको मोड़ देते थे, एक साइड में उसको काफी डार्क कर देता था, फिर ऊपर से थोड़ा वो लगाओ, थोड़ा मुंह के लगाओ तो सामने की तरफ चिपक जाएगा, छप जाएगा, जिसको आप वो ग्लास कॉपी बोल सकते हैं। इज इट द सिमिलर, दिस कर्व इज लिटरली सिमिलर टू z इक्वल्स टू 0। अब मुझे चाहिए -1.43 से लेके +1.43 तक। तो -1.43 इज नॉट, दैट फैसिलिटी इज नॉट हियर, पर मेरे पास क्या है, 0 से 1.43 तो मैं कर ही सकता हूं। सो 0 से 1.43 निकालो, डबल कर दो। अरे सर ये इस साइड तो नेगेटिव है, डबल कैसे कर सकते हैं भाई? नेगेटिव चाहे हो, पर हम तो एरिया के साथ काम कर रहे हैं, वो तो ऑर्डिनेट, वो तो z की वैल्यू नेगेटिव, पर एरिया तो जितना ये एरिया है, जितना एरिया ये रहेगा उतना ही एरिया तो ये रहेगा, इज इट? तो हमको क्या करना है, हमको बस सिर्फ डबल करना है, इतना निकाल लीजिए, इसको डबल कर दीजिए, 0 से 1.43 कर लीजिए, उसको डबल कर दीजिए। सो व्हाट वी विल डू लाइक दिस, 2 times 0 is less than z is less than equals to 1.43. Are we good? Raise your hand, how many of you are getting this? Are we good? How many of you are getting this thing? Good, good, good. अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। मैं जो अभी आपको समझा रहा हूं ना, जो the thing which I am explaining right now, ये क्लास में हर एक बच्चे को, अगर आप लाइव भी है ना, तो भी हर एक बच्चे के दिमाग में घुसाना एक बार, इट इज लिटरली टफ, ये थोड़ा टाइम लेता है। तो अभी अगर आप सही में समझ पा रहे हो, सही में आपको यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपर्ली, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी एक और बात है, रुक जा, कहानी में एक और ट्विस्ट है। हर बार ऐसा ही नहीं होता कि एक बार पॉजिटिव एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। Can you predict my next question? Who will predict my next question? सर Who will एरिया predict डिफरेंट my होगा next- पॉजिटिव नेगेटिव का। क्या बात है, देख कौन बोला, कौन बोला? भौदीप भौदीप। was there ना, माइडी, यस। अभी यहाँ पे 1.43 था, यहाँ पे मैं ले लूं -2.53। सर 0 I'm से 2 interested. Wait. पहले लिखने दे। I'm interested to find -2.53 is less than equals to z is less than equals to 1.43. चल अब क्या करूं? अब तो मैं 0 से 1.43 का डबल नहीं कर सकता, इज इट ना सर, विभूषा? ऐसा नहीं कर सकता। सर 0 से 1.43 का एरिया निकाल लेंगे और 0 से 2.53 का निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। क्या बात की है तूने, परफेक्ट परफेक्ट। देख अब इस केस में एक रीजन ये है, लेट मी चूज माय पेन, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। अरे यार इरेजर नहीं चाहिए, पेन चाहिए और उसका कलर चाहिए। लेट मी पिक क्वाइट, अरे वही तो था, थोड़ा अलग कलर ले लूं। यस, लेट मी पिक येलो वन। अब मुझे क्या चाहिए, एक तो ये एरिया चाहिए, देख यहाँ पे मैं शेडिंग दे रहा हूँ, इज इट? आई नीड वन दिस, एक एरिया ये चाहिए, जो कि क्या है, जो कि होगा probability that -2.53 is less than equals to z is less than equals to 0, जहां पे मैंने येलो कलर का सेटिंग किया है, ठीक है। फिर दूसरा एरिया ये चाहिए, probability that 0 is less than equals to z is less than equals to 1.43। अब वी आर गुड विद दिस, ये तो बहुत आसानी से निकलेगा इस टेबल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमको, ये फाइंड करना बहुत आसान है। 1.4 एंड देन 0.03, 1.4 एंड देन 0.03, बहुत आसानी से निकाल लेंगे ये, ठीक है। पर प्रॉब्लम इसके साथ है, -2.53 इज लेस देन z इज लेस देन 0, तो ये कैसे करूं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी मिरर इमेज लेंगे। जितना एरिया 0 से लेके -2.53 के बीच में है, उतना ही एरिया रहेगा 0 से लेके 2.53 के बीच में, इज इट? तो इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करने वाला हूँ कि दिस इज अ पॉइंट 2.53 और मुझे ये भी चाहिए, फिर उसके साथ उसका एडिशन चाहिए। तो टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर, दिस इज लिटरल इक्वल्स टू, ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, इट इज लिटरल इक्वल्स टू 0 इज लेस देन इक्वल्स टू z इज लेस देन इक्वल्स टू 2.53।
वो तो ऐसे ही मैंने लिख दिया, देखिए इट वाज कॉपीड, इज इट? सो ये नेगेटिव पार्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये पॉजिटिव पार्ट ही आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि दिस कर्व इज लिटरली सिमेट्रिक, इज इट? अब देखिए 2-3 एग्जाम्पल के पहले मैं बीच में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज कर रहा था, अब मैं एडिशन यूज कर रहा हूं, इज इट? सो दैट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि कब एडिशन करना है, कब सब्ट्रैक्शन करना है। अगर वो स्केच आपके दिमाग में है, आपको समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सा रीजन चाहिए एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड नॉर्मल Z टेबल, अगर वो लिमिटेशन भी आपको पता है, ये इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये भी पता है, स्केच आप अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, देन यू विल बी गुड, देन यू विल एबल टू डील विद दिस टेबल। अब मुझे बताइए कितनों को यहां तक की बात समझ में आई? एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस, अब कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज अभी बताइए, अभी के अभी, अबीच के अबीच, अभी चाहिए हमको। अरे बाप रे बाप, क्रिस्टल क्लियर हो गया भारती को। निधि इज अंडरस्टूड, ओके। दिव्य को समझ में आ गया। मेघना तू बता, मेघना आज क्यों बात नहीं कर रही? नाराज है हम लोग से? अरे हमारे क्लास की सीआर नाराज हो गई भाई, बात ही नहीं करी। देखो यस, यस ने समझाया, जैसे यस इज क्वाइट शार्प विथ मैथ्स, यस। जय ने समझाई, गुच्छे, आदित्य इज गुड, सुशील प्रसाद इज क्लियर, भारती, विभूषा क्लियर, निधि, व्हाट अबाउट निधि? निधि कही दी तू, बाकी ना क्या छे जी? मेघना, ओ मेघना, हाँ सर, क्यों बात नहीं कर रही आज? नहीं पानी समझ भी में आ रहा है मैं अभी। कि अभी भी मूड खराब है वो मिड सेम को लेके? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। केफ खाना खा रही है, अरे ऐसा है मेघना? बड़ा पता होता है मैं क्या कर रही हूँ, मतलब स्पाई कैम रख के रखे हैं लोग मेरे पीछे। इट्स ओके, खाना खाते खाते तू पढ़ रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुझे समझ में आया कि नहीं आया, दिस इज माई कंसर्न। समझ में आया ना? अच्छी बात है। मोहम्मद तू अपना बता, तुझे समझ में आया कि नहीं आया मोहम्मद? अपने के साथ ठीक है, मोहम्मद को भी समझ में आया। भवदीप इज क्लियर, सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर क्लियर। Waldi, are you able to understand this particular concept? Yes, How to sir. deal with? Good. That's good. That's good. Sushil, Priyank, Parik. Good. So almost all of you are correct. Now what I'm doing, I just need your 2-3 minutes. जो स्लाइड मैंने अभी स्किप की थी ना पूरी 3 या 4, वो वहां पे आपको लेके जा रहा हूँ और आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन। वेट, इसके लिए जो भी मैंने केसेस बनाए थे ना, वो इस केसेस आर नॉट इंपॉर्टेंट। इसका कोई मायना नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं इसकी। आप इसको पढ़े ना पढ़े, इसको याद रखे, याद तो रखना ही नहीं। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बट नाउ आई एम गिविंग यू द थियरी। तो जो भी अभी हमने क्वेश्चन किए ना, जो भी सारे केसेस डिस्कस किए, उसका थियोरेटिकल पार्ट कैसा होता है ये देता हूं। अब पहले मैं ये करवाता फिर वहां पे लेके जाता, प्रॉब्लम होती पक्का, अब नहीं होगी। देखिए व्हाट इज फर्स्ट केस, Z1 Z2 बोथ आर पॉजिटिव, जो हमने पहले किया था, सबसे पहले किया था। सो मान लीजिए x1 x2 मेरे पास है, जिसकी प्रॉपर्टी हम फाइंड करने वाले हैं, उसको हमने Z1 Z2 में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला Z इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। वो फॉर्मूला यूज करने के बाद हमारे पास Z1 Z2 दोनों है और हम उसकी प्रॉपर्टी फाइंड करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, 0 से Z2, 0 से Z1 दोनों निकालूंगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्यों? दिस इज द रीजन, ऑब्जर्व। अब आपको पता चलेगा मैं क्यों सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं यहाँ पे। एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फ्रॉम 0 टू Z2 वो फाइंड करेंगे, माइनस एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फ्रॉम 0 टू Z1 फाइंड करेंगे। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालना पड़ेगा, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द रीजन बिटवीन Z1 एंड Z2। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? समझ में आ रही है बात? पहला केस समझ में आ रहा है? जल्दी से रिप्लाई तो करना पड़ेगा, बार बार रिप्लाई करना पड़ेगा चैट बॉक्स में। यू कैन नॉट पुट योर सेल फोन असाइड। ओके, गुड। सो दैट वाज द फर्स्ट केस। इसके लिए मैंने कोई एग्जांपल लिया था, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, देखिए यहाँ पे बीच में सब्ट्रैक्शन है फॉर्मूला में, अगले फॉर्मूला में शायद बीच में एडिशन भी आ जाएगा। क्यों आएगा हमको पता है अभी। देखिए अब केस क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, Z1 Z2 में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखिए Z1 इज नेगेटिव, Z2 इज पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में मुझे एरिया चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा,
then I will interested to find 0 to z2, 0 to z1 instead of minus z1 to 0. I will be dealing with 0 to z1 क्योंकि उसकी मिरर इमेज में लूंगा और मैंने किया है z1 z2 दोनों अलग लिए हैं मैंने, तो दोनों का अलग करूंगा. एरिया अंडर द कर्व 0 to z1 प्लस एरिया अंडर द कर्व 0 to z2. ऐसे तो देखिए अगली पिछली साइड में केस 1 में मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा था, यहाँ पे मैं एडिशन कर रहा हूँ. दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. वो कर्व पे, वो ग्राफ पे, कहाँ पे, उसके हिसाब से हम करेंगे. और वो जो टेबल है वो हमको राइट हैंड साइड का पोर्शन ही दे रहा है. राइट हैंड साइड के लिए ही हमको पूरा एरिया दे रहा है. वो जो टेबल है हमारा नॉर्मल टेबल वो. ठीक है. सो दिस इज द सेकंड केस. होपफुली यू गाइस आर गेटिंग दिस. और अगर आप टेबल में थोड़ा देखिए ना, रुक जाओ मुझे टेबल तक लेने जाओ फिर से. देखिए टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखिए यहाँ पे, that is 0.4990. 0.4990. The right hand side lower corner. राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर जो है वो है, जो की वैल्यू है 3.0 से लेके 3.09. उसकी वैल्यू है 0.4990. ये सबसे बड़ी है. ये 1 क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक हाफ है. दिस इज द ओनली 1 हाफ. और हमको पता है एक की वैल्यू 0.5 ही होगी. 0.5 राइट हैंड साइड हाफ, 0.5 लेफ्ट हैंड साइड हाफ, एंड वी आर जस्ट डीलिंग विद राइट हैंड साइड. और उसके बाद एक दो केसेस और भी मैंने रखे हैं यहाँ पे, स्पेशल केसेस. Z1 अगर ग्रेटर देन 0 है उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, पर आई एम नॉट गोना डिस्कस दिस बिकॉज ये बहुत आसानी से मैं करवा पाऊंगा आपके साथ, आपको क्वेश्चन में, वंस वी आर क्लियर विद द टेबल. अगर टेबल हमको समझ में आ गया है तो ये डिस्कस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत आसान होगा, बहुत ही आसान होगा ये सभी आइडेंटिफाई करना. पर फिर भी एक बार देख लीजिए ये कितनों को समझ में आ रहा है. देखिए, if I wish to find probability that Z1 is greater than, if I wish to find probability that X is greater than X1, that means Z is greater than Z1. Z की वैल्यू Z1 से बड़ी है, अगर ऐसा मुझे फाइंड करना है, Z की वैल्यू Z1 से बड़ी है, that means Z1 greater than Z1. तो मैं क्या करने वाला हूं, 0.5 में से 0 से Z1 की फॉर्मूला, 0 से Z1 का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे वो भी मिल जाएगा. देन मुझे चाहिए, मान लीजिए कि मुझे चाहिए if Z1 is negative and I am looking for probability that Z is greater than minus Z1, तो मैं क्या करूंगा, ये तो मुझे पता है that is 0.5, और ये इसकी मिरर इमेज में ले लूंगा 0 से Z1 की, उसमें ऐड कर दूंगा. सो डोंट वरी अबाउट दिस. देखिए अब विदाउट एग्जांपल अगर मैं आपको ये दे रहा हूं ना, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि सर ये कैसे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है. पर जैसे ही हम इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे, it will be clear to all of you. So I'm not interested in this particular cases कि ये कैसे काम कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, that is not important. The important thing is that the understanding of the table. Okay, and I think so it's 1:45. Should we go for example today, or we should cover it in the next lab? बताइए जल्दी से. It's already 1:45. If you guys are comfortable, तो एक दो एग्जाम्पल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हम नेक्स्ट लैब में भी रख सकते, कोई बात नहीं. बताइए मुझे जल्दी से, कोई एक तो बता दो भाई, अनम्यूट करके बता दो. नेक्स्ट लैब, ठीक है, दिव्य बोल दिया, बात खत्म. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग ओवर हियर. आज बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग होगी, तकरीबन 1.5 घंटे की, क्योंकि पूरा जो है वो लैब